Good morning to all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so in last class we discussed about the comparisons Control. and Yes, differences ma'am. between with the flow mechanism, right? Now today's topic is, and that is the second part of your module 2. Okay, data level parallelism and your thread level parallelism. So we will today we will discuss data level parallelism. So in data level parallelism we discuss about the array processor and SIMP processor, right? So basically this data level parallelism we also called as a processor level parallelism. Okay, so we know that the demand for having a faster computer will never die. Always every person wants to have faster computer for different reasons, like we have to do our work very fast, we want to our result very fast, so we required a very fast computer. Okay, so when we are using a instruction level parallelism, which helps a little, but pipeline and superscalar operations can reach up a faster 5 or 10. ठीक है, तो जो हमारे इंस्ट्रक्शन लेवल पैरालिज्म्स होते हैं वो हमारे जो सुपर स्केलर ऑपरेशंस होते हैं,
ठीक है, उन फैक्टर्स को वो अचीव करते हैं, बट वहां पर हम ह्यूज नंबर ऑफ डेटा को हम वहां पर पाइपलाइन नहीं कर सकते और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. ओके, सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर अ डेटा लेवल पैरालिज्म. Okay, so in data level parallelism, we discuss about the processor, vector processor and array processor. Okay, so processor, you all know about the processor. Processors क्या होते हैं सभी को पता है ना? Yes, ma'am. Okay. देखिए मैं दो तीन फाइल्स को ओपन करूंगी पैरेलली, तो इधर उधर स्विच करूंगी मैं, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि मैं कहाँ पर क्या बता रही हूँ. ओके, सो बेसिकली हमारे जो प्रोसेसर्स है वो मैंने आपको बताया टू टाइप्स के प्रोसेसर्स होते हैं. ठीक है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली डेटा लेवल पैरेललिज्म भी आल्सो कॉल्ड एज SIMD. ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा जो होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड डेटा लेवल पैरेललिज्म. ठीक है, इसमें 3 वेरिएशंस होते हैं SIMD मशीन्स के या डेटा लेवल मशीन्स के: वेक्टर आर्किटेक्चर, SIMD एक्सटेंशन एंड ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट्स GPU. We discussed parallel vector architecture and SIMD architecture or processor. You can say that vector processor or SIMD processor. Okay, this vector processor we also discussed vector processor and array processor. ठीक है, and array processor is further attached processor. Okay, so we will discuss one by one. So first of all, SIMD machines are also called data level parallelism. There is a 3 variation: vector architecture, SIMD extension and graphical processor units. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 3 वेरिएशंस हैं. ओके, अब 3 वेरिएशंस में भी आपके क्या है कि जो आपके सिलेबस में है वो आपके 2 है डेटा लेवल में, एरे प्रोसेसर एंड आपका क्या है वेक्टर प्रोसेसर. बट जीपीयू का भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी बेसिकली जीपीयू क्या होता है. राइट, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर आर्किटेक्चर, देन वी विल गो फॉर द SIMD एक्सटेंशन. ओके, ठीक है. सो व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ वेक्टर आर्किटेक्चर? With me in the classroom, okay? Okay, so this is a vector processing. Okay, so basically vector processing we all work on the on array. ठीक है, वन डायमेंशनल array और मल्टी डायमेंशनल array. SIMD and vector both are working on an array, or we can say that vectors, right? So there is a class of computational problem that are beyond the capability of a conventional computer, and these problem receives a vast number of computation that will take a conventional computers days or even weeks, or maybe more than weeks to complete the program. ठीक है, सो बेसिकली क्या है, वेक्टर प्रोसेसर की हमें रिक्वायरमेंट्स क्यों हुई थी, उसके लिए मेन आइडिया क्या है कि जो हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स होते थे जिन पर हम सीक्वेंशियल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते, कन्वेंशनल कंप्यूटर में क्या होगा, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होंगे वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते थे. राइट, हम वहाँ पर शेयर मेमोरी का यूज करते थे. ठीक है, तो जब हमें वास्ट नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस का, अगर हमें कंप्यूटेशन करवाना है, वास्ट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या वास्ट नंबर ऑफ डेटा है, अगर उनका कंप्यूटेशन हमें करवाना है और अगर हम उसमें कन्वेंशनल कंप्यूटर का यूज करेंगे तो इट विल टेक अ टाइम. टाइम आपका वीक भी हो सकते हैं, डेज भी हो सकते हैं, मोर देन वीक भी हो सकता है. ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर सॉल्व नहीं करवाते हैं, जहां पर हमें वास्ट नंबर ऑफ
डेटा या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय द वेक्टर प्रोसेसर, ठीक है। सो कंप्यूटर विद वेक्टर प्रोसेसिंग आर एबल टू हैंडल सच इंस्ट्रक्शन एंड दे हैव एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग फील्ड्स, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है जहां पर वास्ट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट कराना होता है, तो उस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? हमारा वेक्टर प्रोसेसिंग, बिकॉज वो कैपेबल होता है वास्ट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। ठीक है। एंड दिस कंप्यूटर्स with a vector processing capabilities are very much required in a specialized application, ठीक है। अब वेक्टर प्रोसेसिंग का हम एक पर्टिकुलर कुछ जो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं, फील्ड्स हैं, हम जहां पर उनका यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको दिखे जैसे दिखा है कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम वेक्टर प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। तो लार्ज रेंज वेदर फोरकास्टिंग, petroleum exploring, medical diagnosis, aerodynamic of and space simulation, artificial intelligence and expert system, image processing, mapping the human genomes, ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस। तो ये सारे जो फील्ड्स हैं जहां पर हम जो एप्लीकेशंस हैं इनका हम यूज करते हैं इन फील्ड्स में, ठीक है। बिकॉज आपको यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइक मेडिकल डायग्नोसिस है या इमेज प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंट एक्सपर्ट सिस्टम है या वेदर फोरकास्टिंग है, तो आप ये सारे फील्ड्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको इमेजेस दिखती हैं, ग्राफिक्स दिखता है, ठीक है। तो उन इमेजेस में फ्रिक्वेंटली चेंजेस भी होते हैं, लाइक अगर हम मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं तो हमें वहां पर डायग्नोसिस के टाइम पर भी हमारे चेंजेस दिखते हैं, इमेज प्रोसेसिंग में भी हमारे डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में भी हम प्रोडिक्शंस जो करते हैं वो कुछ डेटा के बेसिस पर प्रोडिक्शंस करते हैं, उसमें भी चेंजेस होते हैं। तो इन सबको हम एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो ग्राफ में हम जो वर्किंग करते हैं वो किस पर करते हैं? हम वेक्टर पे, और वेक्टर किस फॉर्म में होता है? आपके एरे के फॉर्म में होता है, राइट। So basically, this vector and parallel processing techniques should be applied to achieve the result of high performance in case of unavailability of complex computer to speed up the execution time of the instruction, ठीक है। अब vector और जो parallel processing techniques हैं हम उसका क्यों यूज कर रहे हैं? Because we have to find the high performance, ठीक है। हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए रहती है, हमें अपने जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स हैं उनको स्पीड अप कराना रहता है ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है उनको हम फास्टली एग्जीक्यूट करा पाए, राइट। तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड अ वेक्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। सो बहुत सारी जो हमारी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं दे रिक्वायर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर ऑफ एरेज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशंस है वो वेक्टर पर वर्क करती हैं एंड वेक्टर हमारे एरे पर वर्क करते हैं। तो वी रिक्वायर्ड अ लार्ज एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है। एरे में हम लार्ज हम मल्टीपल एरेज लेते हैं, उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को फीड कराते हैं, डेटा को फीड कराते हैं और उनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। So these numbers are usually formulated as vector and matrices of related point numbers. तो वो जो भी हमारे numbers होते हैं, जो array के numbers हम use कर रहे हैं उनको हम formulate करते हैं vector में and matrices में, right? So complex instruction which operate on multiple data at the same time required a better way of instruction execution which was achieved by vector processor, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जिन्हें हमें ऑपरेट करना होता है मल्टीपल डेटा पर सेम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है जिन्हें मल्टीपल डेटा है उनको सेम टाइम पर हमें एग्जीक्यूट करवाना है, तो उनके रिक्वायरमेंट के लिए हमें इसके रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम एक बेटर वे होता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का जहां पर हम उन वेक्टर्स का यूज करके मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं, उनसे स्पीड अप कराते हैं, राइट। So this vector processor not only use instruction pipelining, but it also pipeline the data working on multiple data at the same time, ठीक है। तो जो वेक्टर प्रोसेसर होता है वो पर्टिकुलर जो हमने इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन किए सिर्फ उन पर ही वर्क नहीं करता है, बल्कि जो भी उसके साथ मल्टीपल डेटा एसोसिएटेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं सेम टाइम पर जो पाइपलाइन है उन पर भी वो वर्क करता है। सो बेसिकली दिस वेक्टर प्रोसेसर जो क्या है आपके मल्टीपल डेटा इंस्ट्रक्शन को सेम टाइम पर वर्क करता है, राइट। So definition basically क्या होगा आपका? In computing a vector processor there is a CPU that implementation an instruction set containing instruction that operate on one dimensional array of data called vector
compared to scalar processor whose instruction operate on single data item. ठीक है, तो बेसिकली वेक्टर प्रोसेसर हमारा क्या है, सीपीयू है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट पर जो कंटेन करता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और हम उस ऑपरेट करते हैं उसको वन डायमेंशनल एरे पर। जो भी हमारा डेटा होगा वो किसका में होगा, वन डायमेंशनल एरे में होगा, जिसे हम वेक्टर्स बोलते हैं। अब हम इसे कंपेयर करते हैं स्केलर प्रोसेसर से, तो स्केलर प्रोसेसर में हम वन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराते हैं एट अ टाइम, ठीक है, बट हम जो हमारा वेक्टर प्रोसेसर होता है हम उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं एट अ टाइम पर। ये इसका मैं आर्किटेक्चर अभी आपको बताऊंगी कैसे सिंगल और वन डायमेंशन आपका एग्जीक्यूट होंगे, सिंगल एंड मल्टीपल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो है, राइट। So vector processor have high level operations that were on linear array of number of vectors, ठीक है। तो वेक्टर्स प्रोसेसर्स में हमारे क्या होते हैं, हाई लेवल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, एंड इसमें हमारे लीनियर एरे ऑफ नंबर्स होते हैं और वेक्टर्स होते हैं। आपका स्केलर प्रोसेसर जिसमें हमारे पास सिर्फ एक डेटा है, उस डेटा पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बट वेक्टर प्रोसेसर में हमारे पास मल्टीपल डेटा होते हैं जिनके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, राइट। अब वेक्टर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कराते हैं, तो सपोज दिस इज अ वेक्टर व्हिच कंटेन अ वेक्टर डिफरेंट नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ लेंथ n, ठीक है। तो ये कोई वेक्टर है जिसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं जिसने कंटेन किया है, और वो वेक्टर क्या होंगे, एक पर्टिकुलर लेंथ के होंगे। जैसे हम एरे में देखते हैं तो एरे के अंदर जो भी हमारे एरे के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं और उनका एक साइज होता है या एक लेंथ होती है, ठीक है। तो द एलिमेंट v of i of vector v is written as v of i and i's index refer to memory address, ठीक है। v of i एलिमेंट ऑफ v ऑफ i क्या होंगे, हमारे वेक्टर v के एलिमेंट्स होंगे, एंड अगर उसमें पर्टिकुलर जैसे वेक्टर 3 का अगर हमें एड्रेस फाउंड करना है तो हम क्या करेंगे, v ऑफ 3 बताएंगे, ठीक है। जैसे हम एरे में बताते थे कि एरे में हमें अगर किसी एरे एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना रहता था तो एरे ऑफ लोकेशन 3 या लोकेशन 5 ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। सेम एज हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे, वी रिप्रेजेंट योर वेक्टर और एरे, और आई क्या करेगा, आपका मेमोरी एड्रेस जो होगा उसको रेफर करेगा, राइट। तो वी ऑफ आई से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर अब हम वेक्टर प्रोसेसर का यूज करके कैसे हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करेंगे, तो सपोज हम एडिशन करवाते थे टू एरे का, ठीक है। तो सी में अगर हम प्रोग्रामिंग करते थे तो हम कैसे करते थे, इनिशियलाइज करते थे एरे को एंड हम उनको इनिशियलाइज करते थे सपोज a of 10, b of 10 एंड int c of 10, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स हम डिफाइन करते थे एरे के लिए, देन हम क्या करते थे, लूप लगाते थे, देन हमको एडिशन करवाते थे और उसका रिजल्ट स्टोर कराते थे, राइट। बट सेम प्रोग्राम को अगर हम असेंबली लैंग्वेज में करना हो तो हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे आई को एंड रीड कराएंगे ए ऑफ आई, बी एफ आई को रीड कराएंगे, देन हम क्या करवाएंगे, स्टोर कराएंगे सी ऑफ आई के अंदर, एंड जब हम स्टोर कराएंगे उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ए ऑफ आई एंड बी ऑफ आई के अंदर, देन हम इंक्रीमेंट करेंगे आई की वैल्यू को एंड हम इसे कंटिन्यू करेंगे लेस देन 10 के लिए, बिकॉज आई इज इक्वल टू हमारा क्या था, 0 था, हम 10 टाइम्स इसे इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा असेंबली लैंग्वेज में कोड है, ये हमारा सी लैंग्वेज में कोड है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो भी हमारे कोड्स हैं वो एरे के फॉर्म में है एंड यहाँ पर हम उसे असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें वेक्टर प्रोसेसिंग में अगर हमें करना होगा इस प्रोग्राम को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ करेंगे C1:10, हम ये इनिशियलाइज करेंगे एंड इसके अंदर क्या होगा, इज इक्वल टू A1:10 एंड B:10। आप लोगों ने मैटलैब पढ़ा था, मैटलैब में जब हम लोग एडिशन करवा रहे थे वेक्टर्स का, ये मैंने आपको बताया था उस टाइम पर, ठीक है। तो सी में हमारे पास एग्जीक्यूशन में टाइम ज्यादा लगेगा, असेंबली लैंग्वेज में टाइम ज्यादा लगेगा, बिकॉज इट विल टेक सम स्टेप्स टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, राइट। बट हम जब अब वेक्टर प्रोसेसिंग की बात करते हैं, सिंगल वेक्टर इंस्ट्रक्शन या मल्टी वेक्टर इंस्ट्रक्शन, तो हम वहां पर सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड से हम अपने इंस्ट्रक्शन जो है उनको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, कंप्यूटेशन करवा लेते हैं, कैलकुलेशन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया, हम यहाँ पे क्या कोड देंगे, C:1:10, A1:10 एंड B1:10। 10 क्या है, आपका लेंथ है वेक्टर का, ठीक है। तो हम ए और बी का एडिशन करवा के सी में किस में स्टोर करवाएंगे, सी में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो इसका इंस्ट्रक्शन, कोई भी जो वेक्टर इंस्ट्रक्शन होगा उसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ऑपरेशन कोड, बेस एड्रेस सोर्स 1, बेस एड्रेस सोर्स 2, बेस एड्रेस डेस्टिनेशन, एंड यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर लेंथ। तो ये आपका एग्जांपल है जहां पर मैंने लिखा था C1:10, A1:10 एंड B1:10, ठीक है।
प्लस हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो ऑपरेशन कोड क्या होगा हमारा, ऐड सोर्स एड्रेस, बेस सोर्स एड्रेस क्या होगा आपका ए, बेस सोर्स एड्रेस सोर्स 2 क्या होगा बी, एंड बेस एड्रेस डेस्टिनेशन क्या होगा आपका सी। ठीक है, मींस बेस एड्रेस सोर्स 1 और सोर्स 2 क्या है, मींस ए एंड बी है। उसके ऊपर आप एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे एंड उसका रिजल्ट किसमें स्टार कराएंगे, डेस्टिनेशन सी में। और ये तीनों जो वेक्टर्स हैं ये किस लेंथ के हैं आपके, 10। यहाँ पर वेक्टर लेंथ क्या लिखा है, 10, मींस ए बी एंड सी तीनों आपके 10 लेंथ के हैं। उन पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे और उसको स्टोर करवाएंगे। तो ये वेक्टर इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब हम ऊपर आते हैं। अब ये वेक्टर की अपनी एक आर्किटेक्चर भी होती है, स्ट्रक्चर भी होता है, राइट। सो वेक्टर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, read set of data element into vector register, operate on vector register, disperse the result back into memory, single instruction operate on a vector, vector load and store are deeply pipelined, highly memory latency once per load and store, amortize the latency over load size। ठीक है, तो जब मैं वेक्टर आर्किटेक्चर बताऊंगी तो वहां पर ये आपके टर्म यूज होंगे, वेक्टर रजिस्टर, ठीक है, और आपका लोड, वेक्टर लोड, वेक्टर फंक्शन, लोड फंक्शन, तो ये आपके आर्किटेक्चर में टर्म्स यूज होंगे। ठीक है, सो बेसिकली जब हम वेक्टर प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हम उसके लिए एग्जांपल लेते हैं वीमिप आर्किटेक्चर का। ठीक है, वेक्टर मिप्स आर्किटेक्चर का हम एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, वेक्टर रजिस्टर्स होते हैं, स्केलर रजिस्टर, वेक्टर रजिस्टर, वेक्टर फंक्शनल यूनिट एंड वेक्टर लोड एंड स्टोर यूनिट्स, ये 4 हमारे पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था वेक्टर प्रोसेसर में हमारे 2 टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं, स्केलर प्रोसेसर एंड वेक्टर प्रोसेसर। ये स्केलर प्रोसेसर है, इसके ऊपर हम वन सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक R1 R2 को हम ऐड करके R3 में स्टोर करवा रहे हैं रिजल्ट का। ठीक है, तो दिस स्केलर प्रोसेसर ऑपरेट ऑन सिंगल नंबर, ये सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है सिंगल नंबर पर, बट मल्टीपल किसमें हमारे परफॉर्म होते हैं, वेक्टर में। सो वेक्टर प्रोसेस ऑपरेट ऑन लीनियर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और वेक्टर्स। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, ये जो डिफरेंट हमारे पास वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट और मल्टीपल डेटा इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है जिसपे मल्टीपल डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वीमिप आर्किटेक्चर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वीमिप आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, तो वीमिप आर्किटेक्चर में जो हम टर्म यूज करेंगे दैट इज वेक्टर रजिस्टर, स्केलर रजिस्टर, वेक्टर फंक्शन यूनिट एंड वेक्टर लोड एंड स्टोर यूनिट। ठीक है, वेक्टर रजिस्टर क्या होता है आपका, 8 वेक्टर रजिस्टर्स होते हैं, ईच रजिस्टर होल्ड 64 एलिमेंट्स। 8 वेक्टर रजिस्टर होंगे जिसके अंदर हमारे अंदर क्या होंगे, 64 एलिमेंट्स होंगे, 64 बिट्स पर वेक्टर एलिमेंट्स, मींस वन वेक्टर रजिस्टर के अंदर क्या होंगे हमारे 512 बाइट्स होंगे। ठीक है, रजिस्टर फाइल्स है 16 रीड पोर्ट एंड 8 राइट पोर्ट। जो रजिस्टर फाइल होगी हमारी उसके अंदर क्या होंगे, रीड राइट पोर्ट होंगे, तो 16 रीड पोर्ट होंगे एंड 8 राइट पोर्ट होंगे। ठीक है, स्केलर रजिस्टर्स के अंदर क्या होगा, 32 जीपीआरएस मींस जनरल पर्पस रजिस्टर्स होंगे, 32 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स होंगे। ठीक है, एंड वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स है आपकी जो फुल्ली पाइपलाइन होगी आपकी, can start new operation on every cycle and capability of for data and control hazard detection। ठीक है, एंड वेक्टर लोड एंड स्टोर यूनिट होगा जहां पर हम जो भी हमारे डेटा है उसको लोड एंड स्टोर करवाएंगे, राइट। अब डेटा पैरालिज्म क्या होता है, तो पैरालिज्म अराइज फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग essential the same code on a large number of object। ठीक है, सेम कोड को हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पर एग्जीक्यूट करवाते हैं, तब वहां पर हमारा क्या होगा, डेटा लेवल पैरालिज्म अराइज होगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या उसमें वीमिप आर्किटेक्चर में क्या होंगे, सेम यही चीज आपकी वेक्टर प्रोसेसर में है। स्केलर प्रोसेसर, एमआईपीएस प्रोसेसर, स्केलर प्रोसेसर का 32 रजिस्टर्स होंगे एंड स्केलर फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी आपकी, अरिथमेटिक लोड एंड स्टोर। वेक्टर रजिस्टर फाइल के अंदर आपके 2D रजिस्टर्स एरे होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे आपके 32 रजिस्टर्स होंगे, 32 रजिस्टर के समय क्या होंगे 64 बिट एलिमेंट्स पर इंस्ट्रक्शन होंगे एंड सेट ऑफ वेक्टर फंक्शनल यूनिट क्या होंगे आपकी, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, लोड एंड स्टोर। ठीक है, सो ये सब आपके वेक्टर प्रोसेसर्स होंगे।
नाउ दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ VMIP, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेक्टर आर्किटेक्चर, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं VMIPS आर्किटेक्चर का। तो दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ VMIPS, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारी एक मेन मेमोरी है। डायग्राम विजिबल है सभी को अच्छे से, ठीक है। तो ये आपकी एक मेन मेमोरी है, दिस इज अ मेन मेमोरी, दिस इज वेक्टर लोड एंड स्टोर, दिस इज योर वेक्टर रजिस्टर, दिस इज योर स्केलर रजिस्टर एंड दिस इज योर रजिस्टर फाइल, ठीक है। सो यहाँ पर मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा। वो डेटा हमारा कहाँ पर लोड होगा, हमारे वेक्टर लोड एंड स्टोर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी फंक्शनल यूनिट है, वेक्टर लोड एंड स्टोर, यहाँ पर स्टोर होंगे जो भी डेटा होगा। एंड इस डेटा वेक्टर के अंदर जो हमारा डेटा आया है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। तो हमने दो टर्म्स यूज किए थे, वेक्टर रजिस्टर एंड स्केलर रजिस्टर, ठीक है, राइट। तो इस डेटा के अंदर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो सबसे पहले अगर हम स्केलर रजिस्टर में अगर इस डेटा को ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, तो जो डेटा है हमारा स्केलर रजिस्टर वाले उसमें जाएगा, स्केलर रजिस्टर में जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो कौन से परफॉर्म होंगे, हमारे सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म होगा और वो यहाँ पर स्टोर होगा, राइट। अगर वेक्टर रजिस्टर, और ये हमारा कनेक्ट होगा किससे, आपके वेक्टर एंड वेक्टर रजिस्टर, स्केलर रजिस्टर से वेक्टर। अगर हमें वेक्टर रजिस्टर्स, और अगर हम वेक्टर रजिस्टर का यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर किससे कनेक्ट होंगे, हमारे पास मल्टीपल जो डेटा है वो मल्टीपल डेटा हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड कहाँ पर स्टोर होंगे, आपके वेक्टर रजिस्टर्स में आकर स्टोर होंगे। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन यूनिट और अरिथमेटिक जो यूनिट था वो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, लाइक फंक्शन पॉइंट ऐड सब्ट्रैक्ट, फंक्शन पॉइंट मल्टीप्लाई, फंक्शन पॉइंट डिवाइड, इंटीजर, लॉजिक। तो ये यहाँ पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हमारे एग्जीक्यूट होंगे और ये किससे कनेक्ट होंगे, आपके वेक्टर रजिस्टर में, और यहाँ पर वो आपके स्टोर होंगे, राइट। तो ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। So this is a BMIP architecture. Each 864 एलिमेंट वेक्टर रजिस्टर्स। तो ये जो वेक्टर रजिस्टर्स हैं हमारे, वो कितने हैं, हमारे 64 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑल द फंक्शनल यूनिट्स आर वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स। जो भी हमारी फंक्शनल यूनिट है वो हमारी क्या होंगे, वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स होंगे, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड टू दिस फंक्शनल यूनिट, ठीक है। द वेक्टर एंड स्केलर रजिस्टर, दिस बोथ have a significant number of read and write ports to allow multiple simultaneous vector operations, ठीक है। तो जो वेक्टर रजिस्टर एंड स्केलर रजिस्टर है, यहाँ पर आपके क्या होंगे, रीड एंड राइट पोर्ट होंगे। जैसे हमने पढ़ा था 16 या 32 राइट और रीड पोर्ट्स थे, तो यहाँ पर हमारे रीड एंड राइट पोर्ट्स होंगे जो अलाउ करेंगे मल्टीपल साइमल्टेनियस जो वेक्टर्स ऑपरेशन में परफॉर्म करना है उनको अलाउ करेंगे, ठीक है। अ सेट ऑफ क्रॉसवायर थिक ग्रे लाइंस connects these ports to the input and output of the vector functional units, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो होंगे वो हमारे किससे कनेक्टेड होंगे, जो हमारी वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स है उससे कनेक्टेड होंगे। तो दिस इज अ VMIP आर्किटेक्चर। हमें वेक्टर प्रोसेसर की आर्किटेक्चर में हम इसका एग्जांपल लेते हैं और इसे एक्सप्लेन करते हैं, राइट। अब वेक्टर प्रोसेसर्स में जो हमारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन या डेटा एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम भी होता है उनका कुछ, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन टाइम थ्री जो फैक्टर्स है उन पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ ऑपरेंड वेक्टर, स्ट्रक्चर हजार्ड अमंग द ऑपरेशन एंड डेटा डिपेंडेंसी। और जो हमारी VMIPS फंक्शनल यूनिट्स होती हैं वो कंज्यूम करती हैं 1 एलिमेंट पर क्लॉक साइकिल। जो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी वो उतनी क्लॉक साइकिल्स होंगे, ठीक है। कॉन्वॉय होता है एक टर्म हम यूज करते हैं, कॉन्वॉय। तो कॉन्वॉय बेसिकली क्या होता है, अ कॉन्वॉय ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट कंप्लीट एग्जीक्यूशन बिफोर एनी अदर इंस्ट्रक्शन कैन बिगिन एग्जीक्यूशन। मींस जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन, अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है तो जब तक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट होकर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तब तक हम सेकेंड इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड योर कॉन्वॉय, ठीक है। सो अ सेट ऑफ वेक्टर इंस्ट्रक्शन दैट कुड पोटेंशियली एग्जीक्यूट टुगेदर। एक टर्म हम यूज करते हैं चैनिंग। सो चैनिंग क्या होती है, बेसिकली इट अलाउ अ वेक्टर ऑपरेशन टू स्टार्ट एज सून एज द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ इट्स वेक्टर सोर्स ऑपरेंड इज अवेलेबल। जैसे ही हमारा वेक्टर सोर्स ऑपरेंड अवेलेबल होगा हम उसको उस वेक्टर्स को अलाउ करेंगे अपना जो भी
इंडिविजुअल एलिमेंट से उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एंड वेक्टर इंस्ट्रक्शन इज चेन टू अनदर वेक्टर इंस्ट्रक्शन। जो भी हमारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है वो आपस में क्या होते हैं, चेन होते हैं। फर्स्ट का जो भी हमारा रिजल्ट होगा या स्टोर करवाएंगे जो हम एक मेमोरी में, वो सेकेंड इंस्ट्रक्शन या जो अदर इंस्ट्रक्शन है उनके साथ चेन होते जाएंगे, तो एक पूरी हमारी चेन बनती है, ठीक है। एक और टर्म हम यूज करते हैं सिम। तो यूनिट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट वन कॉन्वॉय, वन कॉन्वॉय को जो एग्जीक्यूट होने में जो यूनिट ऑफ टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड योर सिम, ठीक है। सो एम कॉन्वॉय एग्जीक्यूट इन एम सिम। तो ये आपका क्या था, वेक्टर एग्जीक्यूशन। अब हमारे पास वेक्टर जो है उनको एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है, वेक्टर स्टार्टअप टाइमिंग, फंक्शनल यूनिट्स आर पाइपलाइन, लेटेंसी ऑफ वेक्टर फंक्शनल यूनिट इज लार्ज, ठीक है। मींस जो उनको क्लॉक साइकिल्स जो लग रही है, जो डिले हो रहा है वो उसमें ज्यादा होता है। लाइक फ्लोटिंग पॉइंट ऐड में 6 क्लॉक साइकिल होगी, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई में 7 क्लॉक साइकिल्स होंगी, फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइड में 20 क्लॉक साइकिल्स होंगी, वेक्टर लोड में 12 क्लॉक साइकिल्स है। तो मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स हमारी यूज होंगी एंड वहां पर हमारा क्या होगा, डिले होगा, ठीक है। सो दिस इज द चैलेंज ऑफ वेक्टर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट होता है आपका SIMD। SIMD processor, and SIMD processor is also called your data level parallelism or array processor, ठीक है। सो SIMD प्रोसेसर बेसिकली क्या होगा आपका, आपको पता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा पर वर्क करेगा बिकॉज इट्स नेम इज SIMD, ठीक है, which belongs to your Flynn classification. सो SIMD में क्या होता है, हमारा एक सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है जो मल्टीपल डेटा स्ट्रीम पर वर्क करता है, ठीक है। So this SIMD architecture can exploit significant data level parallelism for matrix oriented scientific computing and media oriented image and sound processor, ठीक है। तो SIMD भी हमारा वेक्टर पर ही वर्क करता है बिकॉज इन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एरे का यूज करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पर आपका डेटा लेवल पैरेललिज्म सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, एंड आपकी जहाँ पर इमेज मीडिया ओरिएंटेड जो इमेजेस होती हैं या जो साउंड प्रोसेसर्स होते हैं वहां पर हम SIMD डेटा लेवल पैरेललिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। एंड दिस SIMD इज मोर एनर्जी और इफिशिएंट देन MIMD। तो MIMD से ज्यादा इफिशिएंट हमारा SIMD होता है बिकॉज ओनली नीड टू फेच वन इंस्ट्रक्शन पर डेटा ऑपरेशन प्रोसेसिंग मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स, ठीक है। मीन्स हमारे पास सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस की बेसिस पर हम मल्टीपल डेटा ऑपरेशंस को वहां पर क्या करते हैं, परफॉर्म कराते हैं, हम प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। सो मेक्स SIMD attractive for personal mobile devices. So personal mobile devices में भी हम SIMD का यूज करते हैं, ठीक है। अब SIMD कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली दिस SIMD computers are single instruction stream and multiple data stream and these computers are array processor। हम इन्हें क्या बोलते हैं, array processor भी बोलते हैं। These are multiple processing elements which are supervised under same control unit, ठीक है। सो SIMD का आर्किटेक्चर जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, एक सिंगल हमारी कंट्रोल यूनिट होती है जिससे हमारी मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स कनेक्टेड होती हैं और हर मल्टीपल डेटा स्ट्रीम का अपना एक सेपरेट मेमोरी होती है, वो मेमोरीज हमारी एक कॉमन मेमोरी से कनेक्टेड होती है, ठीक है। सो ईच प्रोसेसिंग एलिमेंट रिसीव सेम इंस्ट्रक्शन बट ऑपरेट ऑन डिफरेंट डेटा फ्रॉम डिस्टिंक्ट मॉड्यूल। तो एक सिंगल ऑपरेशन जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रिसीव करते हैं, मल्टीपल डेटा ऑपरेशन उन पे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको आर्किटेक्चर बताती हूँ SIMD का, ठीक है। सो SIMD इज कॉल्ड एरे प्रोसेसर, इट परफॉर्म कंप्यूटेशन और लार्ज एरे ऑफ डेटा, ठीक है। तो वेक्टर में हम वन डायमेंशनल एरे का यूज कर रहे थे, बट एरे प्रोसेसर में हम क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ एरे का यूज करेंगे। दिस इज ऑल्सो वर्क ऑन वेक्टर ऑन एरे एंड एरे, ठीक है। सो एरे प्रोसेसर बेसिकली हमारे टू टाइप के हम यूज करेंगे, अटैच्ड एरे प्रोसेसर एंड SIMD एरे प्रोसेसर। अटैच्ड एरे प्रोसेसर्स क्या होते हैं हमारे, so to improve the performance of the host computer in a specific numerical computation task, auxiliary processor is attached to it, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है,
उस मेन कंप्यूटर को हम बोलेंगे होस्ट कंप्यूटर, वो हमारा, हम उसे बोलते हैं होस्ट कंप्यूटर, जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है। तो अगर होस्ट कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को हमें इम्प्रूव करना है, उसके लिए जो हम कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल टास्क, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस करते हैं, उस टास्क को हमें फास्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक ऑक्सिलरी प्रोसेसर को अटैच कर देते हैं, जो हमारा होस्ट कंप्यूटर होता है उसके साथ में। ठीक है, तो दिस ऑक्सिलरी प्रोसेसर विच वी आर अटैच्ड टू होस्ट कंप्यूटर इज कॉल्ड अटैच्ड एरे प्रोसेसर। ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं, अटैच्ड एरे प्रोसेसर। क्यों अटैच कर रहे हैं, बिकॉज हमें उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब अटैच्ड एरे प्रोसेसर की आर्किटेक्चर कैसी होगी, तो देखिए ये आपका जनरल पर्पस जो कंप्यूटर है, आपका मेन कंप्यूटर वो हो गया, उसकी अपनी एक मेन मेमोरी होगी जिससे वो अटैच्ड होगा। ठीक है, एक आपने क्या किया, उसके साथ एक एरे प्रोसेसर को अटैच किया है, ये आपका अटैच्ड एरे प्रोसेसर है। और अटैच्ड एरे प्रोसेसर की अपनी लोकल मेमोरी होगी जिससे वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब जो आपका मेन कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर है और अटैच्ड एरे प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा, इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू ये कनेक्ट होंगे एक दूसरे से एंड कम्युनिकेट करेंगे। सिमिलरली जो हमारी मेन मेमोरी और जो लोकल मेमोरी है, होस्ट कंप्यूटर एंड जो आपका अटैच्ड प्रोसेसर है, वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, तो वो कम्युनिकेट करेंगे या कनेक्ट होंगे हाई स्पीड मेमोरी टू मेमोरी बस के थ्रू। ठीक है, तो ये मेन मेमोरी एंड लोकल मेमोरी हमारी किससे कनेक्टेड होगी, हमारी मेमोरी टू मेमोरी बस से कनेक्टेड होंगी। एंड इस तरह से ये सारा का सारा कम्युनिकेशन लिंक जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा या जनरेट होगा, और इस तरह से आपका वर्क करेगा अटैच्ड एरे प्रोसेसर, जो आपका होस्ट कंप्यूटर है उससे कनेक्ट अटैच्ड होगा। ठीक है, so attached array processor has two interface. First is input output interface to a common processor and second is interface within a local memory. ठीक है, तो उसकी अपनी एक लोकल मेमोरी है, इंटरफेस वो हो गया, और सेकेंडली वो इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, होस्ट कंप्यूटर क्या है, हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर मींस मेन कंप्यूटर है, एंड अटैच्ड प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं, हमारा बैकएंड मशीन। जो अटैच्ड प्रोसेसर है इट वर्क एज अ बैकएंड मशीन ड्राइवन बाय द होस्ट कंप्यूटर, जिसे ऑपरेट कौन करता है, हमारा होस्ट कंप्यूटर। हम उसे बैकएंड मशीन के थ्रू की तरह हम उसे रखते हैं और उसको होस्ट करता है हमारा, ड्राइव करता है हमारा होस्ट कंप्यूटर, राइट। एरे प्रोसेसर बेसिकली क्या होते हैं, तो array processor is connected through the input output controller to the computer and computer treat is an external interface। तो जो array processors हैं, ठीक है, वो हमारे किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के थ्रू कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर उन्हें क्या ट्रीट करता है, उन्हें एज अ एक्सटर्नल इंटरफेस ट्रीट करता है। ठीक है, SIMD array प्रोसेसर क्या होगा आपका, सो दिस इज अ कंप्यूटर विद मल्टीपल प्रोसेसर यूनिट ऑपरेटिंग इन पैरेलल। मल्टीपल हमारे प्रोसेसर्स हैं जो पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं। सो बोथ टाइप ऑफ एरे प्रोसेसर मींस आपका होस्ट कंप्यूटर और अटैच्ड एरे प्रोसेसर। ठीक है, मैनिपुलेट वेक्टर्स बट देयर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट। दोनों एरे प्रोसेसर्स की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे हमने अटैच्ड एरे प्रोसेसर देखा था, ये आपकी SIMD एरे प्रोसेसर, जो आपको पता है कि ये आपकी एक सिंगल कंट्रोल यूनिट है। इस सिंगल कंट्रोल यूनिट से जो इंस्ट्रक्शन जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है, उनसे कनेक्टेड हो रहा है। हर प्रोसेसिंग एलिमेंट की अपनी एक मेमोरी है, एंड ये मेमोरी जो है वो किससे कनेक्टेड होगी, आपकी मेन मेमोरी से। सो ऑल द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू अंडर इन अ कंट्रोल सिंगल कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन। और हर एक प्रोसेसिंग एलिमेंट में क्या इंक्लूड होता है आपका, ALU फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक यूनिट एंड वर्किंग रजिस्टर्स, जो हमारे हम प्रोसेसिंग एलिमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन उसका देखा था, इससे प्रीवियस जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पर हमने इसकी आर्किटेक्चर्स देखी थी कि प्रोसेसिंग एलिमेंट की अपनी एक आर्किटेक्चर होती है, ग्लोबल एंड जो आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोसेसिंग एलिमेंट का। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी क्या होती है, मास्टर कंट्रोल यूनिट होती है, जो कंट्रोल करती है ऑपरेशंस को इन द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ मास्टर कंट्रोल यूनिट का